Hello friends, welcome to the Facebook page Excel Stream. So yesterday we learned about the text to column functionality which we use to split the cell values in different columns, and I promise you that I will give you the alternate method using formulas to extract doing the same thing. Okay, so here you go. We are going to use text function for this. First name, left side, use find function, space, within text, 1, -1, here we go. And then for last name we are going to use right of this. Here you go, Abhinay Mishra. We are going to copy and paste it. Here you go, Abhinav Mishra. Oh, somebody says stop. Oh, you are not getting it. Oh, I must have told you about the functions we are using to extract the first name and last name over here. So हमने किया क्या इसके अंदर? Basically हमने left find, हमने कुछ text function use किए हैं यहाँ पर. For example, over here we use left find, and over here we use length function as well, len, length. Okay. So before we come to it, मैं आपको text functions के बारे में बता दूं. Okay. So these are some of the text functions. Left, as the name suggests, it is used to extract the values from the left hand side of the cell value. Okay. Right function, same, from the right hand side value of the text. Len is a short form of len. It helps us to find the length of a cell value in account of numbers. Okay, and last one is the find. So it is used to find the place or position value of a character number in a cell. Okay, equal to left. If you see, it shows written the specified number of a character from the start of a string. Bracket open, text. How many characters? Phone number is how much of length? 10. There you go. Copy and you wanna paste it. Okay. तो हमारे पास कुछ समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो आपका एक साथ लिखा होगा. फॉर एग्जांपल कई बार आपके पास ऐसे डाटा आ जाता है जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट और फोन नंबर एक साथ लिखा होगा और आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा फोन नंबर. तो हम इसके अंदर लेफ्ट फॉर्मूला यूज करके इसको कर सकते हैं. सपोज करिए किसी डाटा के अंदर फर्स्ट पहले नेम लिखा हुआ है एंड देन फोन नंबर है, तो आप कैसे करेंगे इसके अंदर? सिंपल, राइट. कहां से निकालना है आपको? फ्रॉम हियर. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10. There you go. Copy and you're gonna paste it. Are you getting, friends? So left function क्या करता है? हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकाल के देता है डिपेंडिंग अपॉन द numbers we put in the formula. Okay. Please see it again. It says text. किस में से निकालना है? Okay. And number of characters, कितने numbers आपको extract करने हैं from left hand side. Okay. Same goes for right hand, right functions. Right. Text. From which cell? From this cell, C22, and how many characters? 10. Here you go. Okay. Then another important formula over here, एक है आपका length function. अब सपोज करिए इसका यूज केस मैं आपको बताता हूँ क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स आए हैं एंड यू नो पीपल यूज टू प्रोवाइड, कई बार यू नो गलत फोन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं. तो आपको करना है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो आप एक एक करके चेक करें कि इन कैरेक्टर्स, इस फोन नंबर्स की कैरेक्टर लेंथ कितनी है बेसिकली, और यू कैन यूज अ लेंथ फंक्शन. सो इक्वल टू लेंथ. तो लेंथ करेगा क्या? आपको इस सेल के काउंट करके बता देगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर्स वैल्यू इज प्रेजेंट इन हियर. हियर यू गो. सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फिल्टर लगा के देन कि हमारे पास ऐसे कितने फोन नंबर्स हैं जो हमें गलत प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे डेटाबेस में गलत है. ओके. Another important function which we use to split the cell values is find.
फाइंड क्या करता है? फाइंड एक एज अ नेम सजेस्ट एक किसी कैरेक्टर को फाइंड करता है सेल के अंदर से। सो फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? फॉर एग्जांपल हमें इसके अंदर से ये पता करना है कि हाइफन जो है इसके अंदर वो लगा है किस पोजीशन पे आ रहा है। सो जब भी हम टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसको डबल कोट्स में यूज करते हैं। हमें ये फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है? फ्रॉम इट्स विच सेल? दिस सेल। ओके, और किस स्टार्ट नंबर, ये आपके पास ऑप्शनल है। आप इसको इस वैल्यू को खाली छोड़ देंगे तो वो 1 से काउंट करेगा, या आप इसके अंदर कोई स्टार्ट नंबर भी पास कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर 1 पास करने वाले हैं। सो इसने आपको रिटर्न करी वैल्यू 8, तो ये हमारा 8th पोजीशन पर आ रहा है। इफ यू सी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हाइफन कौन सी पोजीशन पे है आपके? 8। तो आपको ये लग रहा होगा फाइंड कैसे क्यों यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स एज यू सी हमने फाइंड यूज किया था टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज। नाउ अब समझिए इसको ध्यान से। सो हमें इसके अंदर से अभिनय निकालना है, राइट? इनके अंदर कॉमन क्या है? सबके अंदर सेपरेट हो रहा है स्पेस से। ओके, सो लेफ्ट आपको कहां से निकालना है? लेफ्ट, फ्रॉम दिस सेल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट नेम है किसी का कैरेक्टर, किसी की लेंथ, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 4 है, इसके अंदर 6 है, 6 ओवर है इट इज 7। सो फिक्स लेंथ नहीं है फर्स्ट नेम की। ओके, तो आप इसमें कोई नंबर वैल्यू पास नहीं कर सकते। अगर मैं 5 कर दूंगा पास और इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने यहाँ पास किया 7। ओके, तो आपके पास फर्स्ट तो सही आ जाएगा, बट जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास गलत आ रहा है, राइट? अरुण झा आ रहा है, राइट? विच इज नॉट करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, क्या करना है आपको? इसके अंदर आप फाइंड करेंगे इसके अंदर स्पेस। ओके, तो क्या करेगा ये? लेफ्ट फंक्शन। ओके, आपको लेफ्ट साइड से टेक्स्ट निकालना है फ्रॉम दिस सेल। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको पता नहीं है, तो आप क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे? स्पेस। फाइंड स्पेस कहां से? फ्रॉम दिस टेक्स्ट एंड फ्रॉम पोजीशन 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। हियर यू गो। आप इसको ड्रैग करेंगे तो यू सी उसने अपने आप फाइंड कर लिया कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर, उससे पहले का वैल्यू आपको निकाल के दे दिया है। ओके ओके, तो नाउ वी आर गोना लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या करेंगे अब आप बताइए? राइट हैंड साइड से निकालना है। ओके, राइट कहां से निकालना है? फ्रॉम दिस सेल। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगेन द सेम प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं है कि लास्ट नेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आने वाले हैं। कहीं पर 5 हैं, कहीं पर 4 हैं, कहीं पर 6 हैं। ओके, तो अब हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक मैथ्स की इक्वेशन बनाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 14, राइट? और इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 8। ओके, तो अगर मैं टोटल लेंथ में से इसकी लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे जितने मुझे चाहिए। नहीं समझ में आया? ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको करके बताता हूँ। राइट, फ्रॉम हियर। ओके, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे? लेंथ फंक्शन क्या करता है? हमें टोटल लेंथ निकाल के देता है उस सेल वैल्यू की। ओके, अगर मैं इस लेंथ में से फर्स्ट नेम की लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? एग्जैक्टली द रिमेनिंग पार्ट विच इज मिश्रा ओवर हियर। हियर यू गो। गॉट इट फ्रेंड्स? Okay, let's see another example. So in this example we have book and code, and we need to extract the book name and the code. Okay, so yes, please help me out here. Left function, right? From this cell, number of characters. Yes, you need to find hyphen over here. So just press type find from which cell? Over here, from position 1 bracket close. Now if see here you जो आपके पास टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है वो विद हाइफन हुआ है, राइट?
तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट करके यहाँ -1 कर देंगे। गॉट इट? सो आपके पास बुक नेम आ गया। अब आपको कोड निकालना है, राइट? तो आपके पास दो मेथड है, एक तो जो हमने यहाँ पे यूज किया था टोटल लेंथ निकाल के माइनस कर दिया था रिमेनिंग में से। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन दिस सेल, इन दिस टेबल, तो यहाँ पे जो आपका कोड है वो 4 कैरेक्टर्स का है। ओके, तो हम इसको सिंपल वे कर लेंगे, इक्वल टू राइट फंक्शन, वी यूज टेक्स्ट फ्रॉम दिस सेल एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4। सिंपल, हमें इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हमारे जो कोड है वो 4 कैरेक्टर्स का है। ओके, अनदर एग्जांपल। सो कई बार क्या होता है, कई बार मेरे फ्रेंड्स का कॉल आता है डेटाबेस वालों का कि यार मेरे पास ना यूजर ईमेल आईडीज हैं, हमें उसका डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो आप डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए? इन सब में क्या कॉमन है बताइए? राइट, @ सिंबल। क्या करने वाले हैं आप? हमें कहां से वैल्यू निकालनी है? राइट से। कहां से? फ्रॉम दिस कैरेक्टर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? तो इसको आप अभी पार्ट से ब्रेक करिए। ओके, तो हम कैसे करने वाले हैं इसको आप देखेंगे। तो हमने क्या किया, अब इसको आप पार्ट में ब्रेक करके देखिए कि अगर मैं टोटल लेंथ निकालता हूं, अगर मैं यहां से निकालता हूं कि मेरे पास ये जो है ये किस पोजीशन पर आ रहा है आपको, अगर आप इसमें से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th पे आ रहा है। ओके, नो, इट्स ऑन द 8th पोजीशन। तो अगर मैं टोटल सेल की वैल्यू निकाल के, टोटल लेंथ निकाल के इस सेल की माइनस इस पोजीशन की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, राइट? टोटल लेंथ निकाल ली इस सेल की। ओके, अब मुझे इसका निकालना है @ तो हम यूज करेंगे फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको? @ डबल कोट्स में करेंगे क्योंकि आप टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यहाँ पर। किस सेल में से? इस सेल में से मुझे @ फाइंड करना है फ्रॉम द पोजीशन 1 एंड देयर यू गो। है ना फ्रेंड, सिंपल। सो दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड सेल में वैल्यू निकालनी है। हमने पहले इस सेल की टोटल लेंथ निकाल ली, विच इज जो भी ये नंबर आया लेंथ निकाल के, और हमने उसमें से जो @ सिंबल की पोजीशन आ रही है उसमें से माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल इस टोटल की लेंथ थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सेल की टोटल लेंथ थी 20। ओके, फॉर एग्जांपल। ओके, तो हमने उसमें से @ की पोजीशन वैल्यू निकाल के माइनस कर दिया, हमें पास बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट। गॉट इट फ्रेंड्स? तो सिंपल है। अगर आपको कोई कोई दिक्कत आ रही हो, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको बनाना हो, तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। ओके, देन आप उसको आपको पता चलेगा कि वो बहुत इजी है इन टर्म्स। जैसे ही आप उसको ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स, आप उसको उस बड़े फॉर्मूले को आप इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। For any queries, please use the comment box to reach me out over here. Thank you. Bye bye.